શ્રી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે। કેમ છો બાળકો? આપણે 3 પાઠ પૂરા થતાં આજે ચોથો પાઠ છે કથની ઓર કરની, બરાબર। એના વિશે થોડુંક સમજવાનું છે અને એનો પાઠ છે બહુ સમજવા લાયક છે। તો પહેલાં શીર્ષક આપણે શું છે કે કથની ઓર કરની, કરો, કહો અને કરો। જે તમે કહો છો તે જ તમે કરો, પણ એવું થતું નથી। આપણે કહીએ છીએ કાંઈ અને કરીએ છીએ પણ કાંઈ, બરાબર છે। તો આપણે પહેલાં એની સમજૂતી જોઈએ। માનવ જીવન પ્રભુ કી અનમોલ દેન હૈ। જો મનુષ્ય છે એ જીવન એ બધા પ્રાણીઓ કરતાં અલગ જ જાતનો આપણી જે બુદ્ધિ શક્તિ બધી રીતે આપણને અલગ રીતે બનાવ્યા છે। તો અનમોલ દેન કહેવાય, દેવા એટલે કે અલગ જાતના આપણે વ્યક્તિઓ છીએ, જેનો મોલ ન થઈ શકે તેવા વ્યક્તિઓ છીએ। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशेष शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन बयान करता है। એટલે ભગવાને પ્રાણીઓમાંથી મનુષ્યને એક અલગ જાતની આપણને શક્તિ આપી છે કે જેથી આપણે સંસારમાં अलग रीते जीवन આપણે चलावीए છીએ। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं અને બધા લોકો છે જે સમયે જે કાર્ય કરવાનું હોય એવું કરતા નથી। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। घણીવાર મનુષ્ય એવા છે બધા કે કહે છે કાંઈક અને કરે છે પણ કાંઈક। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो घણા એવા મનુષ્ય છે કે કહે છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ, બંનેમાં અંતર હોય છે અને તે અહીંયા જે આપણે નિબંધ પ્રકાર છે જે આ પાઠનો એમાં આપણને દેખાડ્યું છે, બરાબર છે। જો મનુષ્ય છે એક ભગવાને એક અલગ જાતના આપણને જેને આપણામાં બુદ્ધિ શક્તિ બધું બધા પ્રાણીઓ કરતાં આપણને વિશિષ્ટ આપ્યા છે, બરાબર છે। તો અત્યારે જ્યારે મનુષ્યનો જન્મ પહેલાં થયો તો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં આપણે જોઈએ તો આપણને અલગ રીતે જ તે બનાવ્યા છે કે અત્યાર સુધીમાં આપણે પ્રગતિ કેટલી કરી છે કે પહેલાં આપણે આદિમાનવના જેમ ફરતા હતા, કાચું માંસ ખાતા, પછી અગ્નિની શોધ કર્યું, એવી રીતે કરતાં કરતાં ત્યારે પહેલાં ઝૂંપડું બાંધીને રહેતા અને હવે મોટા મોટા બિલ્ડિંગ, જે આપણે અમુક તો એવી બિલ્ડિંગો હોય કે આપણે જોઈ પણ નથી અને આપણે આમ ઘણા એવા રૂમ એવા અક્કલ કામ ન કરે એવી રીતે આપણે એમ જઈએ ને ત્યારે આપણને એમ થાય આવોય રૂમ હોય, આવાય ઘર હોય, એવા આપણે મનુષ્યના મગજ એવા અત્યારે તરક્કી કરતા લાગ્યા છે। બાકી બીજા બધા પ્રાણી પક્ષીઓ જેમ રહે છે એમ જ રહે છે। કોઈના માળા અલગ થયા એવા ને એવા, એમાં કોઈએ કાંઈ અલગ રૂમ બનાવ્યા માળામાં, કોઈએ કાંઈક કલર કરાવ્યો માળામાં, કોઈ કપડાં અત્યાર સુધીમાં પશુ પક્ષીઓએ કોઈ સીવડાવ્યા નહીં, જેમ પહેલાં હતા તેવી રીતે જ પશુ પક્ષીઓ અત્યારે હજી રહે છે અને એવી રીતે ખાય છે, બરાબર છે। પણ આપણે પહેલાં શાક રોટલીને એવું ખાતા, અત્યારે બર્ગર પીઝામાં આવી ગયા છીએ, બરાબર। એટલે અલગ અલગ જાતની બધાએ તરક્કી મનુષ્ય કરતા જ રહે છે પણ બીજામાં, એટલે એવું મગજ ભગવાને આપ્યું છે। તો કહેવાનું આમાં એવું છે કે મનુષ્યને કહે છે કાંઈ અને કરે છે કાંઈ, એટલે જે કહો તે જ કરો એ કહેવાનો આમાં આ પાઠનો મતલબ છે। આપણને શું સમજાવે છે કે તમે જે કહો છો તે જ તમે કરો। તો અહીંયા આપણે પાઠ શરૂ કરીએ। પહેલાં બધાનું આમાં ધ્યાન। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। મેં તમને કહ્યું એમ કે ભગવાને મનુષ્યને બધા પ્રાણીઓ કરતાં શ્રેષ્ઠ બનાવ્યા છે, અલગ જાતના। કઈ ગુણો છે ઉસે સવારા હે, ઘણા એવા ગુણો આપેલા છે। જો આપણે બીમાર પડે તો અત્યારે અલગ અલગ જાતના બીમારી આવી છે તો એના અલગ અલગ ડૉક્ટર પણ છે। બાકી પશુ પક્ષીઓમાં એવું કાંઈ આવે ન આવે। इसका उसे अभिमान भी होता है અને મનુષ્યને એનું અભિમાન પણ છે, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। અને આવી રીતે એનું અભિમાન
એને અભિમાન પણ છે, પણ પોતાના ગુણોની ખાણ સમજનારો જે આ વ્યક્તિ છે, મનુષ્ય છે, એવા કાર્ય કરે છે જેને ખરાબ પણ કહેતો હોય છે, જેને એ કાર્ય પોતે કહે છે કે આ ખરાબ છે, પણ છતાં તે પણ એ કરે છે। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने को आते हैं। અને આ બોલવામાં અને વર્તનમાં જુદા પડે એવા કેટલાય ઉદાહરણ આપણે દરરોજ જોવા મળે જ છે। ઘણીવાર આપણે આપણા આજુબાજુમાં ઘરમાં પણ એવા જોવા મળે છે કે આપણે કહીએ છીએ, કેમ તું તો કહેતો હતો ને, કહેતી હતી ને કે હું આમ કરીશ, કેમ ન કર્યું, તું કેમ આમ ન ગયો, કહેતો હતો ને કે હું આટલા વાગ્યા સુધી વાંચવાનો છે, કેમ ન વાંચ્યું। એટલે કહે છે કાંઈ અને કરે છે પણ કાંઈ। જો આ ચિત્ર છે એની ઉપરનું જ આ ઉદાહરણ છે। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। वस्ती जे छे રહેઠાણ હોય ત્યાં સરકારે બગીચો બનાવવા માટે જગ્યા રાખી હતી। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूची। ચોમાસાનો સમય હતો, એ ઋતુમાં એક મહાનુભાવ સજ્જન એક માણસ હતા, તેને ફૂલ છોડ રોપવાની ઈચ્છા થઈ। बात अच्छी थी અને આ વિચાર પણ સારો હતો, બરાબર ને। વે કહી સે પૌધે લાયે, અને તે ક્યાંકથી ફૂલ છોડ લાવ્યા। દેખભાલ ભૂકી અને એની દેખરેખ પણ એને કરી, એનું જતન પણ કર્યું। દેખભાલ કી, પૌધે બડે હો ગયે અને ફૂલ છોડ મોટા થઈ ગયા। કુછ દિનો બાદ ફૂલ ખીલને લગે, અને થોડા દિવસમાં તેમાં ફૂલ આવવા લાગ્યા। પાર્ક અચ્છા લગને લગા, અને આ બગીચો તો બહુ જ સુંદર લાગવા લાગ્યો। મોહલ્લે કે લોગ સુબહ શામ પાર્ક મેં ટહલને લગે, અને મોહલ્લાના લોકો હતા એ સવાર સાંજ બગીચામાં ફરવા આવવા લાગ્યા। ફૂલ સબકો અચ્છે લગતે હૈ, અને ફૂલ તો બધાને સરળ લાગે, એટલે ફૂલ સૌને પ્રિય હોય છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। અને બગીચામાં લોકોની અવર જવર હતી, એટલે એમને એવું લાગ્યું કે લોકો ફૂલ તોડી લઈ જશે અહીંથી। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। અને આથી તેણે બગીચામાં એક બોર્ડ મૂક્યું, અને એમાં શું લખ્યું કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે। आते जाते सब उनको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। અને આવતા જતા બધા આ બોર્ડ વાંચતા અને તેનું પાલન કરતા અને ફૂલ તોડતા नहीं। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। પણ મજાની વાત શું હતી ખબર છે કે જે બોર્ડ જેણે મૂક્યું હતું, જે સજ્જન હતા, એને તે વહેલી સવારે જલ્દી જલ્દી ફૂલ તોડતા નજરે પડ્યા। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। અને એને પછી શરમ આવે, પોતે જ તે લખ્યું હતું એટલે એની શરમ એટલે શરમ આવી, એટલે શરમાઈને તે બોલ્યા, પૂજા માટે ફૂલ લઈ જઉં છું। એટલે આ એક આપણું ઉદાહરણ હતું કે જેણે લખ્યું છે કે ફૂલ તોડવાની મનાઈ છે, અને તે જ વ્યક્તિ ફૂલ તોડતા હતા। હવે આ બીજું ઉદાહરણ છે। બસ મેં લિખા હોતા હૈ ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ હૈ। બરાબર છે ને, આવું લખેલું હોય છે, બસમાં લખેલું હોય છે કે બીડી પીવાની મનાઈ છે। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। तो एक वक्त मुसाफरी करता था ત્યારે એક માણસને બસમાં બીડી પીતો જોઈ અને કંડક્ટરે કહ્યું, એટલે પીને લગા ઉસે દેખકર कंडक्टर ने कहा, तो कंडक्टरे કહ્યું, तो શું કહ્યું, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। કે ભાઈ બસમાં બીડી સિગરેટ પીવાની મનાઈ છે। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बहार फेंकवा दी, અને તેમને સળગતી બીડી બારીની બહાર ફેંકાવી દીધી।
थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। અને થોડા સમય પછી કંડક્ટર ડ્રાઈવરની કેબિનમાં બેસીને સિગરેટ સળગાવીને બંને सिगरेट पीवा लग्या। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। अने एक मुसाफरे आ जोयुं अने तेणे लखेली सूचना तरफ इशारो करीने कह्युं। कोने? तो कंडक्टर ने कह्युं, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। कि भाई, बस में सिगरेट पीवानी मनाई छे। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। अने तरत ज आ सांभळी कंडक्टर तरत ज बोल्यो कि आ सूचना तमारी माटे छे, अमारा माटे नथी। छे ने कि जे कंडक्टर अने ड्राइवर छे एने ज आ नियमनो पालन करवुं पड़े, ते ज करता नथी। हवे आगळ छे नवुं उदाहरण छे। एक व्यक्ति दुकान पर गया। एक व्यक्ति छे ये दुकान पर गयो। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा रख कर ही रहा था कि दुकानदार बोला। हजी ये ते व्यक्ति छे स्कूटर छे दुकाननी सामे पार्क करतो हतो, त्यां दुकानदार बोल्यो, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। कि तमे तमारुं स्कूटर छे पार्किंग में मूकीने आवो। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। तो ते व्यक्तिए कह्युं कि मारे वधारे समय थोड़ું રોકાવું છે, મારે અહીંયા રોકાવું નથી, હું મારો માલ સામાન લઈ લઉં અને અહીંથી વયો જઈશ। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। कि दुकानदारे कह्युं कि दुकान सामे रस्ता पर स्कूटर मूकવું એ કંઈ સારી બાબત નથી। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। ते माणस हतो एने स्कूटर पार्किंग में मूक्યું અને दुकाने आवीने सामान खरीदवा लाग्यो। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। એટલામાં સ્કૂટર લઈને દુકાન પર એક છોકરો આવ્યો અને એને દુકાનની સામે જ रस्ता पर स्कूटर मूक्યું અને दुकाનમાં गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? तो बोलो जे पहला आयो तो एटले तरत बोल्यो। पहला माणसे दुकानदार ने कह्युं, तमे आने केम ना न पाड़ी? वो बोला, यो मेरा बेटा है। अने ते बोल्यो, आ तो मारो दीकरो छे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते। हाँ, केटला एवा लोको छे कि जे एवी आदर्शनी वातो करे कि आम खराब कहेवाय, आव न सारूं कहेवाय, तेवी वात करे, पण पोताने ज्यारे आचरवानुं आवे, पोताने आदर्श पालन करवानुं आवे, आचरण करवानुं आवे, त्यारे आदर्श बधा भूली जाय छे। હવે એક નવું છે, આગળ નવું ઉદાહરણ છે। એક दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक व्यक्ति ने तेमना मित्र મળવા આવ્યા। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे અને બંને મિત્રો વાતોમાં મશગુલ હતા कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ते ज वक्ते कोईके दरवाजो खखड़ाव्यो। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। तेणे बारी में जोयुं तो मकान मालिक हतो ते 4 महीनानुं बाकी भाड़ुं लेवा अवरनवर आवतो हतो। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा અને તેણે પોતાના છોકરાને સમજાવીને બહાર મોકલ્યો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। ते छोकराने बहार गयो ते मकान मालिके तेने कह्युं कि तारा पिताजीने कहे
કે મકાન માલિક મકાનનું ભાડું લેવા આવ્યા છે। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। अने छोकराए तरत ज ते जवाब आप्यो कि पिताजीए कह्युं छे तेओ घरे नथी। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अने छोकरानी વાત સાંભળીને મકાન માલિકે હસવા लाग्या અને ઘરમાં જે મિત્ર આવ્યા હતા બેસવા તે પણ હસવા लाग्या। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गया। जो मुहावरो है तो ते जोईने व्यक्ति शरमाई गई। बराबर। तो हवे आगळनुं उदाहरण, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। एक माणसे पोताना पौत्र यानी एना पुत्रना पुत्रने समजाव्युं हतुं कि क्यारेय आपणे काम खोटी रीते करवुं जोईए नहीं। सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमेशा अपना वारानी राह जोवी जोईए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। एक दिवसनी वात छे, तेओ वीजળી અને પાણીનું બિલ હોય તે ભરવા गया। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था अने तेनी साथे एनो 8 वर्षनो पौत्र पण हतो। पौत्र यानी दीकरानो दीकरो। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे अने बिल भरवावाळानी लांबी हार जोईने एटले आवी लाइन जोईने तेमणे लाइनमां उभेला बधा लोकोने जोई अने कोई उपाय विचारवा लाग्या। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा अने लाइन में उभेला बीजा बधा लोकोने ध्यान थी जोया। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया अने आगळ ज एक ओळखीतो व्यक्ति, परिचित यानी ओळखीता व्यक्ति ऊभा जोया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। तेओए तेनी पासे गया अने बोल्या, दीकरा आ बिल तो तू घरे ज भूली गयो, ले तेने पण जमा करावी दे। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। अने ते व्यक्ति कांई हजी बोले त्यां ज ते एना हाथमां बिल अने पैसा आपी दीधा अने दूर जईने ऊभा रही गया। वह व्यक्ति पोता बार बार उसके हाथ में थमा दिया अने जी कांई बोले ते पहला ज एना हाथ में दे दीधो ने दूर जईने ऊभा रही गया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। अने तेनो पौत्र तो वारंवार कहतो तो, दादाजी लाइन में ऊभा रहो ने। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे अने तेनी बात सांभळीने ते लोको अहींया हता ए बधा हसवा लाग्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। કેટલા લોકો એવા હોય છે કે આવી આદર્શની વાતો કરે છે પણ તેનું પાલન કરતા નથી। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता अने आ प्रकारનું आचरण सारू नहीं। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता अने आवुं आचरण करनारने क्यारे मान मळतुं नहीं। वे हंसी के पात्र बनते अने ते हास्यना पात्र बने छे। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए अने आपणे वाणी अने वर्तन में हमेशा समानता राखवी जोईए। आपणे कहीए कंई अने करवुं कांई एवी रीते करवुं जोईए नहीं। हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता सब सम्मान। जो आपणे वाणी अने वर्तन में समानता राखीए तो जग में आपणने सम्मान मळे छे। बराबर छे। तो अहींया आपणे पाठ में समझ्या कि आपणे जे बोलीए छीए ते कार्य आपणे करवुं जोईए। बराबर। हवे आपणे शब्दार्थ अने मुहावरा जोईए। सवारा यानी सजाया।
अंतर यानी भेद फर्क, पार्क यानी बाग बगीचा, कतार यानी पंक्ति, वर्जित यानी निषेध मनाही, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र यानी जल्दी, तपाक से यानी जोश के साथ जल्दी से, पोता यानी पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा यानी इंतजार, राशि यानी रकम, आचरण यानी व्यवहार અને સદૈવ यानी सदा के लिए। હવે આપણે મુહાવરો જોઈએ। गुणों की खान यानी बहुत गुणी, पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना। હવે આપણે અભ્યાસ જોઈએ। सोच कर बताइए। तो અહીંયા તમારે ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है तो तमारे विचारवानुं छे। तमारे पोतपोताना विचारोथी तमारे आनो जवाब लखवानो छे कि प्राणियों करता मनुष्य कई वाते अलग छे। मैं तमने कीधुं हतुं जेम कि श्रेष्ठ केवी रीते छे ते तमारे अहींया कहेवानुं छे। बराबर। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने कल्पना करने को मस्तिष्क दिया है। એટલે કેટલી બધી બાબત છે। बराबर। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है। बराबर। पुस्तकालय में, धर्मशाला, सिनेमागृह, अस्पताल कई जग्याए एवी छे अने शुं काम तेनुं पण तमारे जवाब लखवानो छे। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं, तमने केम फूल गमे छे तेनो पण जवाब लखवानो छे। चालो आपणे मारा मंतव्य मुजब जे आवे ते आपणे कहीए छीए। बराबर। आना जवाब लखवानो। जो आवो प्रश्न कदाच पूछाय तो आपणे लखवो पड़े। तो आपणे पहेलुं छे, ईश्वर ने मनुष्य को अच्छे अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है। तो ईश्वर ने मनुष्य को सोचने विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बताया है। बीजो प्रश्न है, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा है। तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलवे गाड़ियों जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा गया है। अस्पतालों, सिनेमागृह और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियाँ लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। तीजो प्रश्न है, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं। तो फूल रंग बेरंग भी होते हैं, उनमें से मन भावी सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं और मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में होता है। अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं। आगळनो प्रश्न, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं। कतार यानी लाइन। तो क्या कई कई जगह लाइन में ऊभा होय छे। लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन की दुकान से राशन लेने के लिए भी लोग कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट और टेलीफोन के बिल भरने के लिए भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चलने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में माल में की गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं।
जो आमा विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। तो तमारे अहींया जे पहेलुं छे तो कयुं चिन्ह कहेवाय ते तमारे जोवानुं छे। तो पहेलुं कयुं छे? प्रश्नार्थ चिन्ह। बराबर छे। पेलानी सामे शुं आवे? प्रश्न सूचक चिन्ह चौथुं। पछी बीजुं कयुं छे? जोवो तो पूर्ण विराम पांचमुं। पछीनुं चिन्ह कयुं कहेवाय? उद्गार चिन्ह। पहेलुं विस्मय अने उद्गार चिन्ह। चौथुं छे ए कयुं चिन्ह छे? चालो जोई। हाँ, अल्प विराम। जो छठ्ठुं छे ते। पांचमुं छे ए कयुं चिन्ह कहेवाय? तो एने कहेवाय अवतरण चिन्ह। अने छेल्लुं छठ्ठुं छे एने कहेवाय कयुं वध्युं छेल्ले? हाँ, योजक चिन्ह। हवे अहींया आपणे एक परिच्छेद आपेलो छे, एने तमारे पहेला वांचवानो छे अने एमांथी आ प्रश्न आपेला छे एना जवाब लखवाना छे। तो हूँ पहेला वाँचुं छुं अने पछी एमांथी हूँ प्रश्नना जवाब पण बोलीश। आप शुद्ध हृदय में इस बात पर विचार करें कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते थे। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। हवे આપણે પ્રશ્ન છે અહીંયા પહેલો પ્રશ્ન છે એ જ પેરેગ્રાફમાંથી લખવાનો છે। हम पर किस किस का ऋण है? तो એનો જવાબ એમાંથી છે हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? तो हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसने हमें जन्म दिया है। किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है, उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता। गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तमारे कोईपण आमां सच्चा देशभक्त, माता, मातृभूमि, मातृभाषा कोईपण तमारे अंदर एनुं शीर्षक दई शकाय। बराबर छे। हवे आवता लेक्चरमां आ लेक्चर अहींया आपणे पूर्ण करीए छीए। आवता लेक्चरमां स्वाध्याय जे आमां छे ते आपणे पाकी बुकमां स्वाध्याय ज लखवाना छे, स्वाध्यायना प्रश्न जवाब, अने पछी पुनरावर्तन 1 जे आपणे पाकी बुकमां लखवानुं नथी, अने एना पछीनुं जे काव्य छे आ हिंद देश के निवासी, अने जे चौथो पाठ आपणे कथनी और करनी जोयुं एनो स्वाध्याय, अने आपणे पांचमुं काव्य आवता लेक्चरमां समजाववानुं छे। अने आवता लेक्चरमां पांचमुं काव्य समजावी दઉં, पछीना लेक्चरमां आपणे व्याकरण चलाववानुं
રહેશે. બરાબર, તો આ લેક્ચર અત્યારે પૂર્ણ કરું છું. આવતા લેક્ચરમાં આપણે મળીએ. આવતા લેક્ચરમાં આપણે 5મું કાવ્ય અને એના પછીના લેક્ચરમાં વ્યાકરણની બુક પણ તમે તૈયાર કરી છે. બરાબર છે, તો આ સાથે અહીંયા લેક્ચર પૂર્ણ થાય છે. આવતા લેક્ચરમાં મળીએ, ત્યાં સુધી આવજો.